نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآن بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت. آپ سب کو خوش آمدید ہے بیچ 1 لیکچر نمبر 59 میں. آج ہم کون سا باب پڑھیں گے؟ آج ہم پڑھیں گے باب انفعال. اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیکچر کو. ثلاثی مزید فی، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کسی فعل ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف سے زائد حرف ایڈیشنل لیٹر آ جائے تو ایسے فعل کو ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. اگر ثلاثی مجرد افعال کے روٹ لیٹرز کے ساتھ 1، 2 یا 3 حروف کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ فعل ثلاثی مجرد نہیں رہتا بلکہ ثلاثی مزید فی بن جاتی ہے. ثلاثی کہتے ہیں 3 کو اور مجرد اونلی. تو جو ثلاثی مجرد افعال ہیں ان میں صرف 3 روٹ لیٹر ہوتے ہیں، کوئی ایڈیشنل لیٹر نہیں ہوتا. زائد حروف ایڈیشنل لیٹرز کا فعل میں اضافہ. ثلاثی مزید فی کے ماضی کے پہلے صیغے میں زائد حرف یا حروف کا اضافہ یا تو فا کرنے سے پہلے یا فا اور عین کرنے کے درمیان. کسی باب میں 1 حرف کا اضافہ ہوتا ہے، کسی میں 2 اور کسی میں 3 کا. اب تک آپ نے جتنے باب پڑھے ہیں ان میں آپ نے 1 حرف کا اضافہ دیکھا اور 2 کا. لیٹس اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر. اس سے پہلے ہم چلیں دیکھتے ہیں اپنے ثلاثی مزید فی باب کا چارٹ. پہلا باب ہم نے پڑھا تھا افعال. ماضی مضارع کیا تھا؟ افعل یفعل افعالا. مصدر باب کے نام پر بنتا ہے، حالت نصب میں ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے. تفعیل فعل یفعل تفعیلا. مفاعلۃ فاعل یفاعل مفاعلة. تفعل تفعل يتفعل تفعلا. تفاعل تفاعل يتفاعل تفاعلا. افتعال. پریویس لیکچر میں ہم نے یہ بات پڑھا تھا. افتعل یفتعل افتعالا. آج جو ہم بات پڑھیں گے وہ ہے انفعال. انفعل ینفعل انفعالا. اس کے بعد ہمارا ایک ہی باب رہ جائے گا استفعال. استفعل یستفعل استفعالا. تو بس پھر انشاءاللہ ہمارے مزید کے باب کمپلیٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد ہم ایک کمپریہنسو قسم کی پریکٹس کریں گے جس میں ہم ان 8 ابواب کی قرآن مجید کے آیات میں سے پہچان کریں گے، ان کے روٹ لیٹرز نکالیں گے. اور کیونکہ جو آپ کے سامنے آیات آئیں گی وہ جمبلڈ اپ ہوئی ہوں گی، یعنی میں اس سیکوینس میں نہیں لے کر آؤں گی کہ باب فعال پہ باب تفعیل کی، نہیں، مکس ہوں گی اور ان میں سے آپ نے پہچان کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کریں. اسٹارٹ کرتے ہیں. باب انفعال کے فعل ماضی اور مضارع میں فا کلمے سے ہے، حمزہ اور نون کا اضافہ. یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ جو باب انفعال ہے اس میں ایڈیشنل لیٹرز فا کلمے سے پہلے ملیں گے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ حمزہ اور نون. اب ہم باب انفعال کا فعل ماضی کا صیغہ بناتے ہیں. اس صیغے کو بنانے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب ہم نے فعل ماضی کے لیکچرز کیے تھے، ہم نے فعل ماضی سٹارٹ کیا تو ہم نے فعل ماضی کے 3 عنوان پڑھے تھے. آپ کو یاد ہوں گے
वो 3 मोड थे जिन पे हमने मुख्तलिफ कॉन्जुगेशन टेबल्स बनाए थे प्रैक्टिस के लिए। वो कौन कौन से 3 मोड थे? फ़अला, फ़अिला, फ़अुला, ये 3 थे। तो मैंने लिया आज बाब इंफ़िआल का फ़िल माज़ी का पहला सीगा बनाने के लिए फ़अला, क्योंकि माज़ी का सीगा बनाना है और माज़ी के लाम कलमे में ज़बर आती है, तो फ़अला के आखिर में हमें ज़बर भी मिल रही है। अब एडिशनल लेटर्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कहाँ लेकर आने हैं? फ़ा कलमा से पहले। तो हम अलिफ और नून का इज़ाफ़ा करेंगे, तो सिर्फ़ हरकत अभी नहीं बताएँगे। ठीक है? अच्छा, अब फ़ा, ऐन और लाम जो रूट लेटर हैं, उनकी जो हरकत है वो यही रहेंगी, वो यही वेट रहेगा फ़अला का, राइट? अब हमज़ा जो ये हमारे पास अलिफ है, इस पर हम आरज़ी कसरा लाएँगे, ये हमारा हमज़ातुल वस्ल है एक्चुअली में, ठीक है? और नून को हम लोग साइलेंट कर देंगे, तो ये क्या बन जाए फ़अला। अब मुज़ारे की बारी आती है, तो मुज़ारे के लिए हम इसी माज़ी के पहले सीगे की हेल्प लेंगे और बनाएँगे अपना बाब इंफ़िआल का मुज़ारे का सीगा। तो हमने लिया इनफ़अला। अब क्या करना है कि जैसे आपको पता है कि मुज़ारे बना रहे हैं, तो अलामत मुज़ारे लगाएँगे, राइट? दूसरी बात, फ़िल मुज़ारे में लाम कलमे पर हमेशा पेश होती है, तो हमें इधर लाम कलमे पे ज़बर थी, इसको ड्रॉप करके पेश ले आएँगे। फिर एक और बात, अभी इसको देखिएगा ये कैसे बनेगा, इनफ़ाइल, ठीक है? अभी मैंने लाम कलमे पर पेश नहीं लगाई, ठीक है? तो अब यहाँ ये जो हम हमज़ातुल वस्ल आ रहा है, क्योंकि पीछे आपके पास अलामत मुज़ारे आ रही है, तो हम मिलाकर पढ़ सकते हैं, तो इस हमज़ातुल वस्ल को ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये क्या बन जाएगा? यंफ़अइलु। अब हमारा बाब इंफ़िआल का फ़िल मुज़ारे का पहला सीगा तैयार है, यंफ़अइलु। रह गया मस्दर, तो बाप का नाम ही मस्दर होता है हालत नस्ब में, तो इंफ़िआलन, ठीक है? ये हमारा बाब इंफ़ाल का फ़िल माज़ी का पहला सीगा, फ़िल मुज़ारे का पहला सीगा और मस्दर हमने बदल दिया। फ़िल माज़ी गर्दान, फ़िल माज़ी की गर्दान पहले सीगे इंफ़अला से स्टार्ट करेंगे और सीगा नंबर 14 जमा मुतकल्लिम तक जाएँगे हम, ठीक है? तो ये गर्दान आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फ़िल मुज़ारे की गर्दान को देखिएगा, पहला सीगा है यंफ़अइलु, इसी से आपकी पूरी गर्दान चलेगी। गर्दान को नोट डाउन कीजिएगा। आगे बाब इंफ़िआल, इंफ़अला यंफ़अइलु इंफ़िआलन, इंफ़अला यंफ़अइलु इंफ़िआलन। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। फ़िल माज़ी को ओपन करेंगे, उसपे अ, इसको करेंगे तो क्या आएगा देखिए, अलिफ, नून, फ़ा, ऐन, लाम। अब देखिए अलिफ और नून क्या है? ये एडिशनल लेटर्स हैं यहाँ पर, और रूट लेटर्स अब तीनों एक साथ आ गए, फ़ा, ऐन और लाम, ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट ने हमें क्या बताया कि फ़ा कलमे से पहले एडिशनल लेटर्स ने आना है। फ़िल मुज़ारे को ओपन करेंगे, तो या, नून, फ़ा, ऐन, लाम। अब या तो अलामत मुज़ारे है, नून एडिशनल लेटर है और फ़ा, ऐन, लाम जो रूट लेटर है, वो भी यहाँ भी देखिए एक साथ इकट्ठे हैं। तो ये बाब इंफ़िआल का फ़िल माज़ी मुज़ारे मस्दर है, इंफ़अला यंफ़अइलु इंफ़िआलन। इसको आपने प्रैक्टिस करना है अच्छे से, आपकी फिंगर टिप्स पर माज़ी मुज़ारे होने चाहिए। आपको कोई मोल्ड दिया जाए, तो आप क्विकली फ़ा, ऐन, लाम की जगह पर उन रूट लेटर्स को डालें, तो आप इस मोल्ड में उसको डालकर अपना माज़ी मुज़ारे बना लें, ठीक है? और फिक्स लेटर कौन से हैं, यानी जो एडिशनल लेटर हैं वो इन है, ठीक है? इस तरह से याद रखें, इसकी पहचान इन है। 2 और 3 हरूफ के इज़ाफ़े से बनने वाले। अब वाव, ये हमने बनाए थे,
ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी बनाए थे तो तब 3 की हेडिंग थी, लेकिन एक्चुअली में बाब इफ्तिआल में 2 ही हरूफ का इजाफा हुआ था। इस टेबल में आखिरी 3 अबवाब को लाने का ये रीजन है कि इन तीनों अबवाब में कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हम इस टेबल में अपने बाप का नाम, उसका माजी, मुजारे और मस्तर प्लस खसूसियत को राइट डाउन करते हैं। इफ्तिआलुन, इफ्ताला, यफ्ताइलु, इफ्तिआलन, और जिस फेल का जिक्र हो इसको एहतमाम से करना, अहमियत देकर करना। ठीक है, ये बाब इफ्तिआल की खसूसियत है। अब बाब इन्फिआल को देखते हैं। माजी इनफाला, मुजारे यंफाइलु, मस्दर इनफिआलन। खसूसियत क्या है इसकी? देखिएगा, मुतअद्दी अफ़आल को लाजिम। अब मुतअद्दी अफ़आल क्या है? मुतअद्दी अफ़आल आपको याद होनी चाहिए। वो कौन से अफ़आल हैं जिनमें मफ़ऊल का इस्तेमाल होता है? ठीक है, मुतअद्दी अफ़आल कौन से हैं जिनमें मफ़ऊल आता है और उन्हें ट्रांजिटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। जैसे कुछ इसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन एक क्या पढ़ी थी, ऐसे अफ़आल जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत हो उन्हें मुतअद्दी अफ़आल कहते हैं या ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और लाजिम अफ़आल कौन से होते हैं? उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी कहा जाता है। यानी कुछ ऐसे अफ़आल होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। राइट, तो उनको हम लाजिम अफ़आल कहते हैं। देखिएगा, बाप की खसूसियत, बाप इन्फिआल मुतअद्दी अफ़आल को लाजिम बनाने के काम होता है। ठीक है? ये आप इसकी खसूसियत को नोट डाउन कर लीजिए, इसकी एक ही ये खसूसियत है। बाप की खसूसियत है मुतअद्दी अफ़आल को लाजिम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, बाब इन्फिआल दूसरे अबवाब के मुकाबले में कुरान मजीद में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब इस बाब में जो आपको अफ़आल मिलेंगे वो लाजिम होंगे। ठीक है, तो अगर हमें किसी बाप को मुतअद्दी करना हो तो हम उसे बाप इन्फिआल में लाकर मुतअद्दी करेंगे। इससे पहले जो हमने एक और बाप पढ़ा था, बाब इफ़आल, उसकी क्या खसूसियत थी? उसकी भी यही खसूसियत थी कि वो फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने के काम आता है। ठीक है? बाब इफ़आल भी फ़ेल लाज़िम को मुतअद्दी बनाने के काम आता है। ठीक है? तो अब हम आगे देखते हैं। इम्पोर्टेंट नोट, बाब इन्फिआल का हमज़ा हमज़ातुल वस्ल होता है। एग्ज़ाम्पल देखिएगा, व इज़न नजूम कदारत। अब देखिए कि असल में इन कदारत था, तो ये जो हमज़ातुल वस्ल है इसकी हरकत ड्रॉप होगी क्योंकि पीछे से मिलाकर पढ़ा था। ठीक है, इन कदारत फ़िल माज़ी का सीगा है और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है। काफ दाल रा इसका रूट लेटर है। मज़ीद इस बात को हम समझते हैं एग्ज़ाम्पल से। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कुरान मजीद की। देखिएगा, अल्लाह ताला कैसे अपने बंदों की मदद करता है। अल्लाह ताला ने मेरी भी मदद की, रहनुमाई की। मुझे एक ही आयत में जो है मजीदुन फी और मुजर्रद से एग्जाम्पल मिल गई कि मैं आपको, और एक ही रूट लेटर से कि मैं आपको आ, उनमें फ़र्क समझा सकूं। ठीक है, सुम्मन सराफू सरफ़ल्लाहु क़ुलूबहुम। अब देखिए, एक ये था इन सरफ़ु। ठीक है, अब हमें इसको पहचान करनी है। चले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा हम इसको देख लेते हैं, खोलते हैं इस वाले सीगे को। इन सरफ़ु, और अगर मैं हमज़ातुल वस्ल की हरकत नहीं पढ़ती तो फिर मैं इसको कैसे पहचानूँगी? तो क्योंकि देखिए आखिर में वाव आ रहा है, जमा की निशानी, वाउल जमा ज़मीर। तो ये मुज़ारे भी हो सकता है, मुज़ारे में भी वाव आता है, यहाँ में भी नून ड्रॉप हुआ हो। लेकिन यहाँ अगर हम पीछे देखें तो नून ड्रॉप होने की कोई वजह समझ नहीं आ रही।
اور علامت مضارع بھی نہیں ہے اس پر، تو پھر ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ امر ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں پر جانے سے پہلے ہمیں کیونکہ باب انفعال کا ماضی مضارع کا جو ہے مولڈ یاد ہے، ہمیں اس کا وزن یاد ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس جو ایسی کنفیوژن والی سچویشن آ جائے، آپ نے سب سے پہلے آئین کلمے کی حرکت دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ماضی مضارع کیا ہے؟ باب انفعال کا، انفعلا ینفعلو، سواد را فا ڈالا، روٹ لیٹرز کا کیا ہے؟ سواد را فا۔ تو اگر ہم اس کو باب انفعال کے ماضی مضارع کے مول میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ انصرفا ینصرفو۔ تو اب عین کلمے پر ہمیں زبر مل رہی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واؤل جمع ضمیر ہے اس میں۔ اور دوسری طرف صرفا، یہ سواد رافا باب دوات سے آیا ہے۔ باب انفعال میں اس کی ٹرانسلیشن کیا ہوگی؟ لوٹنا، پلٹنا، ایک حالت سے دوسری حالت پر لوٹ جانا۔ آپ کو میننگ سے ہی آئیڈیا ہو رہا ہے کہ یہ یہاں پر لازم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یعنی فعل کا اثر فاعل پر ہی ہے صرف۔ اور اگر ہم صرفا کا میننگ دیکھتے ہیں باب دوات سے تو کیا آتا ہے؟ پھیرنا، ہٹانا، تو یہ متعدی ہے یہاں پر، پھیرنا، ہٹانا۔ اور اگر میں کہوں ہٹانا تو کس کو ہٹانا؟ کسی کو تو ہٹائیں گے، کوئی تو مفعول ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ باب دعات سے یہی روٹ لیٹر متعدی فعل میں آ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے پہلے سے کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو کیا ٹرانسلیشن ہوگی؟ پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، یعنی یہاں فائل کی بات ہو رہی ہے کہ فائل جو ہے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ لفظ جلالہ یہاں فائل ہے، ٹھیک ہے؟ تو صرف اللہ، اللہ نے پھیر دیا، ٹھیک ہے؟ کس کو پھیر دیا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کو، ٹھیک ہے؟ اللہ نے پھیر دیا ان کے دلوں کو۔ تو آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ باب انفعال میں لازم افعال آتے ہیں۔ کامن پوائنٹس بٹوین باب افتعال اینڈ باب انفعال، جیسا کہ میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ آخری تین ابواب میں کچھ سملیرٹیز ہیں، کچھ کامن پوائنٹس ہیں۔ جیسے ہم نے شروع میں باب انفعال، باب بے افتعال وغیرہ اور باب مفعلہ، ان تین ابواب میں بھی کچھ سملیرٹیز تھیں، اسی طرح باب انفعال، باب افتعال میں بھی ہے۔ اور جو اس کے بعد ہم باب پڑھیں گے تو پھر ہم تینوں کی کمبائن کر لیں گے، ابھی ہم ان دونوں کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو دیکھیے گا باب افتعال اور باب انفعال۔ باب افتعال میں دو حروف زائد ہیں، سیم باب انفعال میں بھی دیکھیں دو حروف زائد ہیں، حمزہ اور نون کا ایڈیشن ہوا۔ باب کی حمزہ حمزۃ الوصل ہے، اسی طرح باب انفعال کی حمزہ بھی حمزۃ الوصل ہے۔ یہ آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح سے آئیڈیا ہونا چاہیے کہ جس الف پر حرکت ہو وہ حمزہ کہلاتا ہے، اور جس الف پر حمزہ نہ ہو خالی الف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جس الف پر حرکت ملے گی وہ حمزۃ الوصل ہے، اور جس الف پر آپ کو کوئی حرکت نہیں ملتی وہ صرف الف ہی ہے، خالی الف کہلاتا ہے۔ باب افتعال علامت مضارع پر زبر ہے، دیکھیے گا جیسے ہم نے اس کا روٹ اس کا جو ماضی مضارع کیا بنا تھا؟ افتعال یفتعل، تو باب انفعال میں بھی کیا ہے؟ علامت مضارع پر زبر ہے، انفعل اور ینفعل، جبکہ باب فعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ میں یہ تین ابواب ہم نے ایسے پڑھے جن میں علامت مضارع پر ہمیں زبر ملی تھی، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم صرف ان دو کی بات کر رہے ہیں، ہم جو سملیرٹیز ہیں وہ ان دو ابواب میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ نے باب تفاعل اور باب تفاعل کو نہیں لے کر آنا بھی ذہن میں، ٹھیک ہے؟ ہم صرف ان دو کو دیکھ رہے ہیں۔ فعل مضارع میں عین کلمے پر زیر ہے، دیکھیے ٹوٹل جو ہم نے 8 ابواب پڑھنے تھے، ہم نے باب تفاعل اور باب تفاعل کا پڑھا کہ یہ دو ابواب ایسے ہیں جن کے عین کلمے پر فعل مضارع میں عین کلمے پر زبر ہے، لیکن باقی تمام ابواب میں عین کلمے پر زیر ہے۔
सेम बाब इनफाल में भी ऐसा ही है। अच्छा, अब जो सिमिलैरिटीज की अभी मैंने जो आपसे बात की या कॉमन पॉइंट्स की, तो बाब इफ्तिआल, बाब इनफियाल और बाब इस्तफाल, इनका तीन का एक अलग ग्रुप है। हमने ग्रुपिंग की थी ना। पहला ग्रुप था बाब फ़ाल, बाब तफ़ईल और बाब मुफ़ाअला। सेकंड ग्रुप में हम ले आए थे बाब तफ़ाउल और बाब तफ़ाउल, और ये थर्ड वाला ग्रुप हमारा चल रहा है। ठीक है, तो हम सिमिलैरिटीज भी इन उसी ग्रुप की लेकर आएंगे आपस में। तो आई होप कि आपने ये नोट डाउन कर ली होंगी। फेल अमर बनाने का तरीका। फेल अमर हाजिर के 6 सीगों से बनता है। वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा लेंगे, तंग फाइलू, क्या करेंगे, अलाम के मुजारे ड्रॉप करेंगे, लाम कल में को मजूम करेंगे, पढ़ा जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमजातुल वसल लेकर आएंगे। तो ये क्या आ जाए, क्योंकि आइन कलमे पर जेर है तो हमजातुल वसल पर भी हम जेर लेकर आएंगे। अगर आइन कलमे पर पेश होती तो हमजातुल वसल का पेश आती। तो रूल क्या है, अगर आइन कलमे पर हमें जेर या जबर मिल जाए तो हमजातुल वसल पर जेर ही आती है। अमर में हमजातुल वसल पर सिर्फ जबर बाब इफ़आल में मिलेगी आपको, और किसी बाब में नहीं मिलेगी। ये फेल अमर की गर्दान है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, फेल अमर हाजिर के 6 सीगों से बनता है। बाब इनफ़ाल मंसूब या खफीफ। मंसूब और खफीफ के रूल्स आपको याद हैं, ठीक है। कुछ ऐसे हरूफ आते हैं जिनकी वजह से फेल मुजारे मंसूब या खफीफ हो जाता है। लाम जिन सीगों के आखिर में हमें लाम कलमे पर पेश मिलती है वो जबर में चेंज हो जाते हैं। नून वाले सीगों की नून ड्रॉप हो जाती है, और जमा मुजक्कर गायब और जमा मुजक्कर हाजिर के सीगे ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये बाब फ़ाल की मंसूब की गर्दान है। आगे बाब फ़ाल मजूम की गर्दान। अब फिर देखिएगा, इसमें क्या है, जिन कलमों के आखिर में सीगों के आखिर में पेश थी ना वो मजूम हो गए, और नून वाले जो सीगे थे उनकी नून ड्रॉप होगी तो वो मजूम हो गए। और जमा वाला सीन इधर भी सेम ऐसे ही रहा कि जमा मोनस ने तब्दीली एक्सेप्ट नहीं की अपेरेंटली। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, माजी मजहूल और मुजारे मजहूल बाब इनफ़िआल का। ये पॉइंट नोट कीजिए कि बाब इनफ़िआल क्योंकि लाजिम अफ़ाल पर मुश्तमिल है, इसलिए इसका फ़ेल मजहूल मुमकिन नहीं। ठीक है, तो क्योंकि मजहूल मुतअद्दी अफ़ाल का बनता है, तो यहाँ पर लाजिम अफ़ाल है इसलिए यहाँ मजहूल है। इस्मुल फ़ाइल बनाते हैं। बाब इनफ़िआल का इस्मुल फ़ाइल किस मोड पर बनेगा, मुफ़ाइलुन। स्टेप्स वही लिए हुए हैं, ठीक है। क़ाफ लाम बा, इनक़लबा यनक़लिबु इनक़िलाबन। तो मुंफ़ाइलुन के वेट पर क्या बना, मुंक़लिबुन, पलटने वाला। फ़ातरा, इनफ़तरा यनफ़तिरु इनफ़ितारन, मुंफ़तिरुन, हट जाने वाला। इस्मुल मफ़ूल को देखिएगा, मुंफ़अलुन के वेट पर बनेगा। ये मोल्ड है इस्मुल मफ़ूल का, बाब इन्फ़िआल का। क़ाफ लाम बा से बनाएंगे इस्मुल मफ़ूल, मुंक़लबुन, जिसके जरिए पलटा जाए। दूसरा रूट लेटर क्या है, फ़ा त्वारा, मुंफ़तरुन, जिसके जरिए हटा जाए। तो ये इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल का हमारे पास मोल्ड आ गया। ये टेबल है सर्फ का, ये बनाइएगा। रूट लेटर्स और उनके मस्दरी माना मैंने लिख दी हैं आपको। पहला है काफ शीन फा, जाहिर होना या खुलना। काफ सीन रा, टूटना। अब मीनिंग्स पर भी नोट कीजिए कि मीनिंग्स कैसे हैं। जैसे ये हमें मीनिंग से ही आइडिया हो रहा है कि ये लाजिम अफ़ाल है। काफ लाम बा, पलटना। काफ दाल रा, मानिंग पढ़ना, बिखर जाना। कॉफ आइन, कट जाना। तो ये आप सब जरूर बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। माजी मुजारे जितने आप अब तक पढ़े हैं उनको जरूर एक बार वॉइस में रिपीट किया करें उनको, और अपने किसी साथी को सुना दिया करें ताकि उसको भी याद हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको शरह सदर अता फरमाए, मेरे लिए आपको सिखाना आसान बनाए और आपके लिए सीखना आसान बनाए। आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं मैं देखती हूँ, और कोई एक
भी आप लोगों में सीख गया, पड़ गया तो आप लोग जो है मेरे लिए ये सदका जारिया है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग भी आगे सिखाएँ। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी फरमाए। आज हमने क्या सीखा? आज हमने बाब इंफ़िआल सीखा। इंफ़अला यंफ़अलु इंफ़िआलन। बहुत मुख़्तसर सा लेक्चर है, बहुत छोटा-सा ये बाब है, कोई इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट बाब, बाब इस्तिफ़ाल में मिलेंगे और इसके पहले हम लोग बाब तफ़ाउल की भी प्रैक्टिस करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।